Hi friends, let's continue with the numericals of chapter number 10, section 1 and 2, that is fluid statics and fluid mechanics. In the previous lecture we had seen the numericals of exercise. Now we will see the illustrations connected to these topics. Okay, the very first we'll take illustration 10.1. Illustration 10.1 says that the two thigh bones, femurs, each of cross section area 10 cm square, support the upper part of a body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by the femurs. Now each femur cross section area is given to you 20 cm square, sorry, 10 cm square. Now here, area of each femur is given 10 cm square, so two femurs and two thighs, total becomes 20 cm square, that is 20 into 10 is to minus 4 meter square. Then the mass it is sustaining, the mass of the body, upper part of the body is 40 kg. तो pressure कितना है वो फाइंड करना है. Now pressure we know it is force upon area. Now here force कौन सा होगा, तो upper body part का weight force mg and area of cross section of the femurs रख दो यहाँ पे, this much न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हो गया रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन 10.1. बराबर, स्वीट एंड सिंपल. Pressure is force upon area, that is force is due to weight of the body. Now we come to 10.2. What is the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of the lake? Pressure on the swimmer 10 meter below the surface of the lake. See, there is a lake surface and there is a water. Swimmer is somewhere here, let's say at point P or point A at a depth of 10 meter. Now pressure on the swimmer, total pressure on the swimmer, or let's say absolute pressure on the swimmer will be P will be equal to, एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा PA प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट, तो PA प्लस H rho G, pressure due to liquid column H rho G and plus atmospheric pressure here. Now atmospheric pressure is 1.01 into 10 raised to 5. That's atmospheric pressure plus pressure due to this depth, that is 10 meter into rho. Density of water is 10 raised to 3. Density of water is 10 raised to 3 kg per meter cube. फिर G 9.8. टोटल मार दो तो ये 1.01 इंटू 10 रेज टू 5, ये 10 रेज टू 4 हुआ, तो प्लस करना है तो 10 रेज टू 5 का ऑर्डर में कर देते तो 0.98 इंटू 10 रेज टू 5. सो देयरफॉर दिस विल बिकम 1.99 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट इज द टोटल प्रेशर एक्सप्रेस्ड बाय द स्विमर. अगर खाली वाटर का प्रेशर बोला होता तो दैट वुड बी दिस मच, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओनली, देन दैट इज दिस मच. बट वी वांट टोटल प्रेशर ऑन द स्विमर, सो atmosphere pressure plus pressure due to this water, so total PA plus H rho G. Okay, then we come to 10.3. now 10.3 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन को जैसा, the density of the atmosphere at sea level is 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with altitude, then how much high would the atmosphere extend? atmosphere कितनी हाइट तक एक्सटेंड होगा, बराबर है. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर ये एटमॉस्फेयर, लेट्स से ये एटमॉस्फेयर सारा. नाउ दिस एटमॉस्फेयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सी लेवल, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA. तो हमें पता लगाना है कि अगर ये एयर की डेंसिटी यहाँ पे 1.29 kg पर मीटर क्यूब हो तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरेट करने के लिए कितनी हाइट की जरूरत पड़ेगी, यानी एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक एक्सटेंडेड है. सपोज द हाइट इज h, बराबर, तो ये h हाइट वाला एटमॉस्फेयर is exerting pressure on the sea surface, that is atmospheric pressure PA. PA की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है, यानी कि 1.01 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप इतना प्रेशर जनरेट करने के लिए इस डेंसिटी वाला ये एयर कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट होगी. नाउ वी नो दैट प्रेशर P is equal to H rho G due to a fluid. We require height H, तो P upon rho G. प्रेशर कितना है 1.01 into 10 raised to 5. डेंसिटी कितनी है, तो एयर की 1.29 into G का वैल्यू 9.8, तो दिस विल कम आउट टू बी 8000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 8000 मीटर आएगा, यानी 8 किलोमीटर कितना आएगा. तो 8 किलोमीटर यानी कि एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड टिल 8 किलोमीटर. एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड टिल 8 किलोमीटर, 8000 मीटर हाइट तक एक्सटेंडेड है.
That's what this means. Okay, so to create this much pressure, 8 kilometer height of atmosphere is there, which creates this much pressure, atmospheric pressure on the surface of sea level. Okay, ये हो गया 10.3. देख लीजिए तीनों की. Then we'll switch over to 10.4. तो नेक्स्ट लेते हैं 10.4. 10.4 में कहानी कुछ ऐसी है. एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? पहला पार्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर. डेप्थ दिया 1000 मीटर. ये ओशन सरफेस है, ये वाटर, ओशन वाटर. ये पॉइंट ए विच इज एट द डेप्थ ऑफ एच, 1000 मीटर डेप्थ पे पॉइंट. बराबर. यहाँ पे प्रेशर कितना होगा फाइंड करना है, टोटल प्रेशर. Now total pressure, or let's say absolute pressure. Total pressure and absolute pressure is same. Absolute pressure P is equal to PA plus H rho G. यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा PA प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस डेप्थ. तो PA कितना है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस H 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1.03 इंटू 10⁵. नॉर्मल वाटर डेंसिटी 10⁵ होता है. सी वाटर इज सॉल्टी, तो डेंसिटी थोड़ी हाई होती है, तो दैट इज 1.03. एंड फिर जी का वैल्यू 10 लेना है यहाँ पे. जी इज टू बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में. सो दिस बिकम्स 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 3 मिनटी 3 मिनटी 6 मिनटी और एक 7 बराबर. तो ये हो जाएगा 1.03 इंटू 10⁷ और हमें ऐड करना है दोनों को. इससे 10⁵ के पावर में रखे तो ज़्यादा अच्छा है. तो क्या करेंगे, इसको 10⁵ करें तो 103 हो गया. 103 इंटू 10⁵ प्लस 1 है 104 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट इज द टोटल प्रेशर. दैट इज द टोटल प्रेशर. ओके, 104.01 पर 0.01 तो निकले करते 104 हो गया 10⁵. नेक्स्ट पूछा हमको गेज प्रेशर. गेज प्रेशर मीन्स प्रेशर ड्यू टू वाटर ओनली. So gauge pressure P will be equal to H rho G only, and that is the second part. That comes out to 103 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये आ गया गेज प्रेशर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. उसके बाद थर्ड बोला है उन्होंने. थर्ड पार्ट ऑफ दिस सम इज फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 by 20 centimeter of a submarine at this depth, the interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure, the density of sea water. अच्छा ना, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि इस डेप्थ पे यहाँ पे एक सबमरीन है, उसकी विंडो पे, विंडो स्क्वायर है 20 बाई लेंथ एंड ब्रेथ. तो ये विंडो पे कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है. विंडो का लेंथ एंड ब्रेथ दिया तो एरिया मिल जाएगा. एरिया ऑफ द विंडो दैट इज L इंटू बी एंड दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 400 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. ये विंडो का एरिया हो गया. इसका फोर्स कितना लगेगा, तो प्रेशर. तो बोला सबमरीन के अंदर आउटसाइड प्रेशर कितना है सबमरीन के लिए, विंडो के लिए आउटसाइड प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर 104 इंटू 10⁵. ये आउटसाइड प्रेशर है. इनसाइड प्रेशर कितना, इनसाइड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर बोला हुआ है. 1 एटमॉस्फेयर मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये जो प्रेशर अंदर का और बाहर का दोनों का डिफरेंस कितना, दैट एक्ट्स ऑन द विंडो. तो therefore difference in pressure will be PO minus PI acting on the window, that is 104 minus 1, तो 103 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये एक्स्ट्रा excess pressure हो गया acting from the outside, and that excess pressure creates a force. Here this excess pressure delta P will be equal to force upon area. We require force, so force will be equal to delta P into area. That is 103 into 10⁵. This is 103 into 10⁵ into area 400 into 10⁻⁴. बराबर है. इसको सिंप्लीफाई करो, इतना न्यूटन फोर्स आएगा ऑन द विंडो. ओके, सो दैट्स सम नंबर 10.4. Just go to that.
चल नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 10.6 नंबर, 10.5 इसके बाद ले लेंगे। 10.6 में बोला हुआ है इन अ कार लिफ्ट compressed air exerts a force F1 on the small piston having a radius of 5 cm। अब ये फिगर आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा, फिगर 10.6 जो दिया हुआ है सम के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे। तो उसमें देखो तो स्मॉल पिस्टन उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल पिस्टन का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर अ फोर्स F1 एक्टिंग ऑन दैट स्मॉल पिस्टन, इस पे फोर्स कितना F1 लगा है। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। फिगर में देखिए बाजू में, इट्स गिवन दैट इट इज ट्रांसमिटेड टू द सेकंड पिस्टन on which a car is placed, बराबर है। if the mass of the car to be lifted is 1350 kg, calculate F1, what is the pressure necessary to accomplish this task। हमें बोला है कि राइट साइड जो कार पड़ी हो उस पे कार का वजन इतना हो, तो इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये कार मूव हो, सो दैट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द कार। ओके, now कार का मास m2 दिया, मास 135 kg दिया, therefore weight of the car यानी force F2 acting on the larger piston will be m2 into g, 1350 into 9.8, this much Newton, बराबर है। now here the tube, both the cylinders are connected to each other, wire tube, so compressed air is acting on both the sides, we know fluid exerts equal pressure everywhere। किसने बोला ऐसा? पास्कल ने। तो according to Pascal's law pressure exerted on each side is same, P1 equal to P2। तो स्मॉलर पिस्टन पे फोर्स F1 अपॉन एरिया A1 इज इक्वल टू लार्जर पिस्टन पे फोर्स F2 अपॉन एरिया A2। नाउ फोर्स F1 जो हमें ढूंढने का विल बी इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू F2। A1 स्मॉलर पिस्टन का एरिया पाई R1 स्क्वायर, A2 लार्जर पिस्टन का एरिया पाई R2 स्क्वायर इंटू F2 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। We can get the force now, मिल जाएगा फोर्स। यानी कितना प्रेशर जनरेट करना पड़ा है, कितना प्रेशर जनरेट करना पड़ा है, तो प्रेशर P1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सर F1 अपॉन A1 लेने का, F2 अपॉन A2 नहीं ले सकते, लो ना, दोनों सेम ही था, P1 P2 बोथ आर सेम, कोई एक प्रेशर ढूंढ लो, दैट इज द प्रेशर एक्सर्ट। ओके क्लियर, ये हो गया सम नंबर 10.6, इक्वल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द साइड, दैट इज द बेस हियर। Next we go for illustration 10.5। चलो नेक्स्ट हम ले लें illustration 10.5। now 10.5 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कुछ ऐसा, 2 syringes of different cross sections without needles। syringes मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए जो यूज करते हो syringe, तो दोनों डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाली है और दोनों में नीडल नहीं लगाई आगे, विदाउट नीडल्स, आर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब। ये बीच में टाइटली फिटेड रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब दोनों तरफ टाइटली फिट है, सो दैट नो एयर कैन आल्सो मूव इन एंड आउट। डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन, सॉरी टाइटली फिटेड विद रबर ट्यूब फिल्ड विद वाटर, तो यहाँ वाटर फिल किया हुआ है इसमें बीच में। अब डायमीटर ऑफ अ स्मॉलर पिस्टन एंड लार्जर पिस्टन आर 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ये स्मॉलर पिस्टन, ये लार्जर पिस्टन, दोनों का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बोला है कि ए, पहला बोला है find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston। छोटे वाले पिस्टन पे अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा है, इधर इस पिस्टन पे 10 न्यूटन फोर्स लगा है, सपोज ये 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इस पे कितना फोर्स जनरेट होगा वो फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड फोर्स जनरेटेड ऑन द लार्जर पिस्टन। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये तो कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, कनेक्टेड सिलेंडर्स हैं, इससे प्रेशर इक्वल ऑन ऑल द साइड्स, तो फिर प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमें F2 फाइंड करना है, तो मेकिंग F2 द सब्जेक्ट का फॉर्मूला, F2 इक्वल टू F1 इंटू A1 बाई A2 बाई A1, A2 बाई A1, बराबर है। तो एरिया कहाँ से आएगा, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो गया, यू गेट द फोर्स जनरेटेड हियर, इतना न्यूटन आएगा फोर्स। ओके, फर्दर यू आर सेड दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट अगर ड्यू टू दिस फोर्स इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। अगर यहाँ पे इस फोर्स के कारण ये अगर L1 डिस्टेंस का करता है, L1 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये पिस्टन कितना डिस्टेंस मूव आउट करेगा इन L2 फाइंड करना है। इधर अगर L1 जितना
मूव किया पिस्टन ने, तो ये पिस्टन कितना मूव करेगा वो फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे हम लोग पास्कल्स लॉ से काम कर सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV is constant, that is A1 V1 equal to A2 V2. Now area of cross section तो pi r1 square, V1 क्या होगा, डिस्टेंस कॉर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कॉर्ड L1 है अपॉन टाइम t बोल देते हैं। सिमिलरली ऑन द अदर साइड pi r2 स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी V2 L2 अपॉन t, t तो कैंसिल हो गया, सेम टाइम लिया, हमें फाइंड करना है L2, तो L2 इज इक्वल टू पाई पाई भी कैंसिल हो गया यहाँ, तो L2 will be equal to R1 upon R2 का होल स्क्वायर into L1 this much सेंटीमीटर फोर। तो ये हो गया रिगार्डिंग 10.5 कितना फोर्स लग रहा है एज वेल एज कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पिस्टन का, वो भी अपने देख लें यहाँ। चलो फिर चलते हैं 10.7 की तरफ। जब चलते हैं 10.7 की तरफ। 10.7 में दिया हुआ है ब्लड की वेलोसिटी ढूंढने का मेथड। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्जर आर्टरी ऑफ एन लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर का काम है फ्लो स्पीड फाइंड करने का, तो उसे डॉग की आर्टरी के साथ लगा दिया। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी, यानी कि 8 मिलीमीटर स्क्वायर वाइडर पार्ट का, और नैरो पोर्शन थ्रोट द नैरोस्ट पार्ट ऑफ एन एरिया A इक्वल टू 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो थ्रोट का एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। फिर द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल, प्रेशर डिफरेंस कितना है 4 पास्कल। तो फिर हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ वेलोसिटी ऑफ फ्लो का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस यूजिंग वेंचुरीमीटर इज V1 equal to root 2 times P minus PA into A square upon rho into A square minus A square। ये फॉर्मूला वेंचुरीमीटर का, वेंचुरीमीटर से वेलोसिटी फाइंड करने का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस ये फॉर्मूला हो गया। प्रेशर डिफरेंस आपके पास में छोटा एरिया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर भी है, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करना है। एंड डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ ब्लड चाहिए, कहाँ से मिलेगा, वैसे तो टेस्ट में तो आपको दिया होगा, इट विल बी गिवन, द वैल्यू विल बी गिवन, पर फिलहाल राइट नाउ यू विल बी फाइंडिंग इट इन टेबल नंबर 10.1। आगे टेबल 10.1 लिस्ट द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, उसमें ब्लड की डेंसिटी ले लो तो 1.06 into 10⁻³ है, रख दो यहाँ पे एंड यू गेट द स्पीड ऑफ फ्लो यूजिंग वेंचुरीमीटर 10.7। ओके, फिर चलते हैं 10.8 की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10.8 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 10.8 रीड समवट लाइक दिस। Here you are told about a plane. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10⁵ kg. Its total wing area is 500 meter square. Wing area is 500 meter square. Mass दिया है, area of the plane wing दिया हुआ है। फिर it is in a level flight with a speed of 960 km per hour. स्पीड 960 km per hour दिया, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि वी विल बी यूजिंग स्ट्रिक्टली एसआई सिस्टम, तो ये मीटर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। फिर यू आर गिवन दैट एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सर्फेसेस ऑफ द विंग्स। प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है। तो दूसरा, एस्टिमेट द फ्रैक्शन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सर्फेस, यानी इंक्रीज कितना होता है वेलोसिटी का, वो फाइंड करना है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो इक्वल टू 1.2 kg per meter क्यूब, डेंसिटी ऑफ एयर ये लेना है। अब सबसे पहले हमें ढूंढना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द विंग्स, यानी ये विंग है प्लेन की, तो ऊपर एंड नीचे दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस ढूंढना है। नाउ दिस प्रेशर डिफरेंस ऑब्वियसली नीचे प्रेशर हाई होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, लोअर प्रेशर भी मोर एज कम्पेयर टू हायर प्रेशर अपर प्रेशर, तो ही ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। एंड ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कितना करेगा, फोर्स कितना अप्लाई करेगा यहाँ पे, जितना ये बैलेंस कर सके mg को, वेट फोर्स ऑफ द प्लेन, उसको बैलेंस कर सके, बराबर है। तो हियर पहले सेक्शन में हियर वेट फोर्स
of plane is balanced by pressure difference. बराबर है। तो फिर हमें ढूंढना है प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी कितना होगा इसको बैलेंस करने के लिए। सो व्हाट वी हैव इज F is equal to mg, that is the weight force. Here F is equal to pressure into area. Force का फॉर्मूला pressure into area. यहाँ कौन बैलेंस कर रहा है? एक्सेस प्रेशर, तो डेल्टा P into area. Therefore डेल्टा P into A is equal to mg. बराबर है। So therefore डेल्टा P excess pressure required to balance it mg upon A. m एन मास दिया हुआ है, g का वैल्यू 9.8, 3.3 into 10 raised to 5 into 9.8 upon area 500. इतना एक्सेस प्रेशर चाहिए टू बैलेंस, प्रेशर चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए बिटवीन द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द प्लेन विंग। ओके, देखिए हो गया। फिर दूसरा बोला हुआ है कि फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी। सेकंड में बोला है फाइंड द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी इज हाउ मच, फ्रैक्शनल इंक्रीज यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। ओके, तब शुरू करते हैं। यहाँ पे चेंज वेलोसिटी फाइंड करना है। चेंजिंग वेलोसिटी मींस v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1 जो भी हो, दोनों का डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अब देखिए थोड़ा डेरिवेशन आ जाता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी वाई इज कांस्टेंट। Therefore writing for the upper and the lower part, p1 plus half rho v1 square plus rho g y1 equal to p2 plus half rho v2 square plus rho g y2. Let's say upper part is 1 and lower part is 2. Okay. Now here, as wings are thin, तो y1 y2 दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए? डिफरेंस इन वेलोसिटी। अब प्रेशर नीचे ज्यादा है तो वहां वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ऊपर कम है इससे वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो v1 विल बी मोर देन v2, v1 मोर देन v2, तो p1 को उधर भेज देते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। तो हाफ रो कॉमन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 माइनस p1, p2 इज बिगर देन p1। बराबर है, ये डेल्टा p हो गया, देयर इज नथिंग बट डेल्टा p। ओके, चलो इसको यहीं रखते हैं, डेल्टा p। एंड ये हो गया हाफ रो इंटू v1 माइनस v2 इंटू v1 प्लस v2। ओके, सो v1 चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v1 माइनस v2, तो क्या होगा ये 2 टाइम्स डेल्टा p अपॉन रो इंटू v1 प्लस v2। बराबर है ना। हियर इसको लिखेंगे डेल्टा p अपॉन रो इंटू v1 प्लस v2 बाई 2, एवरेज वेलोसिटी हो गई। एंड वो कौन सी है ये? तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा p अपॉन रो इंटू एवरेज वेलोसिटी। डेल्टा p है आपके पास में, ये रहा। डेंसिटी है आपके पास, ये रहा। एवरेज वेलोसिटी भी ये रही 267, रख लो यहाँ पे। तो ये चेंजिंग वेलोसिटी है डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ हमें फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड चाहिए, तो देयरफॉर डेल्टा v अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू v एवरेज भी है आपके पास में, कहाँ है? ये रहा 267, एंड डेल्टा भी यहाँ पे ढूंढ लिए, रख दो दोनों को दिस मच, फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट मल्टीप्लाई 100, ये आएगा ऑलमोस्ट 8%। मतलब कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी, फ्रैक्शन इंक्रीज कितना है नीचे के कंपेरिजन में, ऊपर के कंपेरिजन में नीचे के कंपेरिजन में ऊपर इंक्रीजिंग वेलोसिटी कितना है? तो दैट इज 8% इतना। ओके, सो दैट्स सम नंबर 10.8। गो टू दिस। Now here, ये हो गया sum number 10.8. Now here we finish the numericals pertaining to section 1 and section 2 of this chapter number 10, that is fluid statics and fluid mechanics. उसके रिलेटेड सम्स खत्म हुए। नेक्स्ट हम लेंगे विस्कोसिटी के बेस सम्स।